ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಮುಕ್ತಾಂತರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಕ್ ಈಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಕಳೆದ 15 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಯನ್ನಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಒತ್ತುಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಜೆಪಿ ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಜಾನ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಲಾಂ ಹಫೀಸ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಕಾವುಲ್ಲಾ ಹಫೀಸ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಅದನ್ನ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪೂಜಾ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು जुमा का मौका अगर निकल गया हजारों लोग इससे पहले हो जाएंगे किसी चीज को सरकारी साहब की सदारत में हमारे उलमा इकराम जो है आज शाम को मगरिब बाद या इशा के बाद उलमा की मीटिंग बुलाए और दूसरे होगा बुलाए तस्वीर के रूपों से ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನಾವು 50,000 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಲಸಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆದು ಈಗ MLA ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. तो हम ऐसे ही एग्जाम किया है, अगर ये हो गया तो आप ही का एग्जाम को जोड़ सकते हैं. देखो एग्जाम की सबका हो गया, देखो एग्जाम किसी को ये भी हो सकता है. मैडम अभी 4-5 दिन तो बाकी नहीं, कल फ्राइडे उसके बाद सैटरडे नहीं, आज से भी शुरू करेंगे, आज से शुरू करके कल फ्राइडे सैटरडे संडे दे रहे हैं समझ में आ रहा है. अब परीक्षा की क्या है, आवाम में कुछ तशवीश है, उनके दिल का जो है गुमान वो निकालना है. तो सहकारी टैबलेट जो है वो बहुत बुरी चीज है, सहकारी टैबलेट जो है वो बहुत बुरी चीज है. और खुदा का पता उनके दिमाग में डर है, खौफ है, उसके लिए क्या होगा और उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं था. आप डॉक्टर साहब ने ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದೆ. ಯಾರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಇಲ್ಲ HOD साहब शीरा साहब नया सिनेमा कंप्लीट पब्लिक कहते पैगाम पब्लिक को जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि इससे कोई नुकसान नहीं है. पब्लिक ये भी डर रही है कि उसकी जिस्मानी ताकत भी कमजोर हो जाएगी ये इंजेक्शन लेने के बाद. इसलिए खौफ और हरासान का माहौल है, पब्लिक डर गई है. लिहाजा हमारी देश से आपको अपने डॉक्टर साहबान से और महकमा मौजूद है, DC साहब भी है, डिप्टी साहब भी है हमारे आफ्ताब साहब कि पब्लिक के दिलों से पहले खौफ काटना है. खौफ काटने के बाद नए और मेरे पिताजी और कुछ ऐसे शख्सियत जिनका जो है मोहल्ले घर पर पूछकर हमारे साथ वो वाक़िदा की माती की है कि उनके पास
पास जाकर हम पूछते हैं घर के अंदर कोई किसी को कुछ सिम्टम्स वगैरह हैं, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, इस तरह अगर किसी को होता तो वहीं पर जो टर्म लेकर जाते थे और वहीं पर टेस्ट कराते थे। और किसी को टेम्परेचर ज़्यादा दिखता तो उनको सस्पेक्टेड मिलेगा जो है तभी का तभी जाकर इंस्टेंटली वो टेस्ट कराते थे। तो पॉजिटिव रहता था तो हमारे सेंटर को ले जाकर एडमिशन लेते थे। तो इस तरह से मेरी एक राय, सजेशन मेरा ये था कि इस बार भी हम घर घर पहुँचकर, अगर हमें हेल्थ की टीम या कॉर्पोरेशन की टीम कोई साथ देती है तो घर घर पहुँचकर हम 45 अबव जो भी हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके हमारे पास एक डेटा आ जाएगा कि 45 के यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं तो उनको देना है। तो उनको ऊपर जो है मेहनत करके उनको भेज सकते हैं और वो इसके लिए नहीं, वो एक्सरसाइज हम बाद में कर सकते हैं। हमारे देश में अब तक तो 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुका है, तो किसी को इतना कॉम्प्लिकेशन या डेथ नहीं हुआ है 10 करोड़ में। एंड हमारे मैसूर ज़िले में तो 3 लाख तक वैक्सीनेशन हो गया है। 3 लाखों में भी कुछ नहीं हुआ है। जो वैक्सीन लेते हैं उसको कुछ ज़्यादा नहीं होता है, माइल्ड फीवर होगा, थोड़ा बॉडी पेन, या जहाँ पे वैक्सीन दिया हुआ है वो माइल्जिया करके बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ा दर्द होगा 1-2 दिन के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हमने खुद वैक्सीन लिया है, 2 बार भी लिया है, तो हम तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमको। जो भी 45 एंड अबव है, जो एलिजिबल है वैक्सीन जी वैक्सीन के लिए जो एलिजिबल है जो 45 एंड अबव है, हम जिला फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी करके बोलते हैं उससे ज़्यादा बढ़ते हैं और जो कोविड रिलेटेड डेथ्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो हमारा ये NR मोहल्ला है, मंडी मोहल्ला है, ये 3-4 एरियाज जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन बिल्कुल ही बहुत कम है। यदि पूरे स्टेट में देखेंगे तो ये 3-4 एरियाज एंड वो जो 3 जोन्स है 7, 8, 9 बहुत ही कम है। तो हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि रमज़ान से पहले जो 1 हफ्ता है, इस हफ्ते में आप सब वैक्सीनेशन करवा दो, क्योंकि रमज़ान आप सुकून से कर सकते हैं। रमज़ान के टाइम पे आपको डिस्टर्ब नहीं करना। तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहा है कि कुछ नहीं होगा, जो व्हाट्सएप पे या जो सोशल मीडिया में जो जितना ज़्यादा न्यूज़ फैला हुआ है वो सब इतना सच के बहुत बहुत दूर है। तो आप प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा दो। जी मैडम, अभी जो मैसूर के जितने भी मौलवी हैं उन लोगों के साथ आपकी मीटिंग हुई है, तो मौलवियों की मीटिंग में आपको उनका रिस्पांस कैसा था मैडम आपके साथ?
सी मौलवियों की मीटिंग में 2 बार वो मौलवियों ने क्वेश्चन किया है कि आवाम के खौफ कुछ ज़्यादा है, तो हमने बोला है कि आवाम के खौफ दूर करने के लिए आप सबको वैक्सीनेट करवाना है। तो वो सभी लोग तैयार हो गए कि हम पहले वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि जितना भी हम बोलेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं। जो एक फोटो का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उन सब ने एग्री किया है कि हम सब वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो उस राइट से आप दूसरे लोगों को बोल सकते हैं कि हमने वैक्सीन लिया है, हमको कुछ नहीं हुआ, आप भी ले लीजिए। दूसरा जो बात हुई है वो बोल रहे हैं ये जो वैक्सीन 250 रुपीज़ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं वो मुफ्त में दिया जाए। तो हम मैसूर सिटी में 53 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमने आइडेंटिफाई किया है जो फ्री दे रहे हैं। तो ये 3 वार्ड्स में ही 15 हॉस्पिटल्स है जो फ्री में दे रहे हैं। एक और बात हुई कि अगर लोग ज़्यादातर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हम खुद मोबाइल टीम लेके आके वैक्सीनेशन करवाएंगे। सो ये दोनों बहुत ज़्यादातर यही बात सुनने में आया, तो दोनों एड्रेस कर रहे हैं। तो हम खौफ हटाने के लिए बोल रहे हैं 10 करोड़ लोग का वैक्सीनेशन हो गया है, 3 लाख लोग का मैसूर सिटी में मैसूर ज़िले में वैक्सीनेशन हो गया है, उसको कुछ नहीं हुआ है जी। इससे इस नंबर से ज़्यादा हम कुछ बात भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर एविडेंट है। एंड सिर्फ एनआर मोहल्ला की अथवा एनआर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये खौफ जी ये अच्छा नहीं है ना जी। ज़िले में खौफ नहीं, एक क्षेत्र में खौफ का ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये सच की बहुत दूर है। तो आप 10 लोग आप करवा दो, अब खुद को पता चलेगा कि कुछ होगा कि। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैसूर के डीसी मैडम और मैसूर कॉरपोरेशन के कमिश्नर मैडम, डिप्टी मेयर साहब और मैसूर के सरखाजी साहब की सदारत में मैं और हमारे दोस्त अहबाब सब मिलकर 10 लोग आज वैक्सीन लिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी मैसूर की आवाम के वास्ते एक मैसेज है कि सब लेना चाहिए। ये जो 40-5 साल की उम्र के बाद जो भी है उनको फ्री हॉस्पिटलों के अंदर अरेंज किया गया है। कोई तकलीफ़ नहीं है इसमें, कोई आने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ लेना ज़रूरी है। ये लेकर इस डर को भगाइए, इस वबा को भगाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। कल जुमे की नमाज के टाइम पे मैसूर की पूरी मस्जिद के अंदर एक मैसेज जाएगा कि जितने भी 40-5 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको फ्री डोज दिया जा रहा है, वैक्सीन दी जा रही है। मेहरबानी कर उलमा इकराम की बात सुनकर ये डोज को लेकर, ये वैक्सीन लेकर ये वबा के वास्ते एक मैसेज बने कि मुसलमान भी ये वैक्सीन ले रहे हैं, डर नहीं रहे बोलकर एक मैसेज देने के लिए कल जुमा के अंदर ये मैसेज दिया जाएगा। इसके ऊपर बयान किया जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब वार्ड के अंदर एक प्रोग्राम बनाया जाएगा इंशाल्लाह। रमज़ान में भी इफ्तारी के बाद भी 7 बजे से 10 बजे तक अरेंज कर रहे हैं। मैं आफ्ताब साहब, डिप्टी मेयर साहब, सरखाजी साहब सब बैठकर डीसी मैडम से, कॉरपोरेशन कमिश्नर मैडम से बात कर एक मसला हल किए हैं कि आप सब मिलकर मुसलमाना जो इफ्तारी के बाद भी 10 बजे तक इसका अरेंज कर रहे हैं। वार्डों के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर जहाँ जहाँ सहूलत होगी वहाँ पर अरेंज कर लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आकर इंजेक्शन लिए और इंजेक्शन लेकर लोगों में एक अच्छा मैसेज पहुँचाए। शुक्र है। देखो, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो ये वबा थी 1 साल पहले, जो इंसान डर रहा था हॉस्पिटलों को जाने के लिए, आज जो है हॉस्पिटल नहीं, जैसे सेंटर समय बनाए थे जो फारूकिया सेंटर और एंडलन सेंटर, ऐसे 4-5 सेंटर बनाए थे ना, ये सेकेंड वेव जो आ रहा है उसमें बहुत कम है हॉस्पिटल। अगर आ गए तो बहुत तकलीफ होगी। इस वास्ते हमें अगर हमारी अवाम को अगर कुछ मैसेज देना है तो फर्स्ट हमारे पर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अवाम को देंगे। इसीलिए आज मैं और बशीर भाई और हमारे सरखाजी साहब तीनों ने बैठ कर वैक्सीन लिया। खुद हमारे डीसी साहब भी थे, हमारे कमिश्नर साहब भी थे, उनके मौजूदगी में हम इंजेक्शन लिए हैं कि अवाम को एक मैसेज पहुँचे कि इसमें कुछ नहीं है। इसलिए आप डरिए मत, जाइए, आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की अवाम जो है इंजेक्शन ले रही है, इसमें कुछ नहीं है। आप उसमें डरिए मत, जाके लेना। जो आपकी बार नहीं है ऐसे, अगर वो डीसी साहब ऐसे बोल रहे थे कि अगर आपको कहीं मस्जिद में ही है, अगर 100-200 लोग अगर उधर ही जम के लेना चाहें, हॉस्पिटल को नहीं जाना चाह रहे हैं, तो उधर मैं अरेंज करके दे सकती हूँ, ऐसे डीसी साहब बोल रहे थे। इसमें कुछ भी नहीं है। आज तो हम तीनों ने इंजेक्शन लिया है। कल अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने भी लिया था और डीसी मैडम का 2 डोज भी हो गया है, कमिश्नर मैडम का भी हो गया है। हमारे जितने भी कारपोरेटर साहब हैं पूरे लेके हैं।
इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर फिर वैक्सीनेशन अगर तुमने लेना है तो इमीडिएट जितने सेंटर से आज जो हम रिलीज़ करें इतने सेंटर से बगैर पैसे के 250 रुपये भी नहीं है चार्ज, आराम से जाके फ्री ऑफ कास्ट आप ले सकते हैं। इसमें कुछ भी डरिए मत करके मैं बोलना चाहता हूँ। शुक्रिया चाहेंगे। कोविड नंबर 1 में जो हालात थे वो हालात से सब वाकिफ़ हैं कि छोटे बड़े हर कौम मुल्क का बाशिंदा जो है परेशान हाल था, बहुत परेशान इस ज़िंदगी गुजरी। उनका रोज़गार चलेगा, घर में छोटे बड़े भूखे प्यासे रहने लगे और उस माहौल में जो है लॉकडाउन की पाबंदियां जो है बहुत सख्ती से लागू थी। ये हालत थी और उसके बावजूद जो है हज़ारों के इस वबा से मर गए। अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत अता फरमाए। और इस दरमियान में चंद महीने जो है चंद राहत व सुकून के हमें मिले। हमें इसी रोज़गार की तलाश में और बग़ैर परेशानी के अपने धंधों में लग गए थे। अब जो है चंद दिन से कोविड सेकेंड का हमला जारी हो गया है और जगह जगह फैल रहा है। हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये वबा कोविड सेकेंड जो है वो फैलने की वजह से हर हुकूमत परेशान है। उस वक्त पहले कोविड नंबर 1 में जो है वैक्सीन इलाज वगैरह नहीं था, अब जो है वैक्सीन तैयार कर लिया गया है। ये 40 तो 5 साल के बाद वाले जो है उम्र वाले इसे लेना ज़रूरी करार दिया है। तो इस वजह से आज मैं भी यहाँ पर वैक्सीन लिया। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी सेहत को बरकरार रखे, मुझे सेहतमंद रखे और इस इलाज को कामयाबी अता फरमाए। इसी तरह से मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे हुकूमत के नुमाइंदे वगैरह भरोसा दिलाए और जो हमारे दिलों में तशवीश थी वो परेशानी को दूर करे। आज मैं वैक्सीन ले लिया हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वैक्सीन को जो है आवाम में मकबूल फरमाए और आवाम इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। और ये वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से जो है फ्री में दिया जा रहा है ताकि इस वबा कोविड से जो है तमाम महफूज रहें, खुशहाल रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से गुजारें।